Very good morning to all of you. Students, till the last class, we have done the case where we are going to find out the force for a charged particle placed in a uniform magnetic field. Earlier of that, we have done with the Lorentz forces. Now we have to find the force on a current carrying charge conductor placed inside a magnetic field. फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ लॉरेंट्स फोर्स हमने जब पढ़ा था देयर इज ए चार्ज पार्टिकल एंड उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स फॉर दैट। लेटर ऑन हमने उसके लिए फोर्स की एक एक्सप्रेशन को डेवलप किया when there is a single electric force, when there is a magnetic force and when there is a coupling of the two. Now what we are going to do कि हमें अब क्या करना है, एक चार्ज कैरिंग कंडक्टर लेना है and it is placed inside a magnetic field and we have to find a force on that. तो हमने क्या किया, we have assumed there is a conductor which carries the current I, which you can see that is rightward, जो आप देख सकते हैं कि by figure it is from P to Q, the current direction is from P to Q and as the current carrier is electron here, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम देखें कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, and that is moving opposite to the direction of current. Therefore the direction of the Q, which is the negative charge particle, is directed toward the opposite to the direction of current with a velocity, drift velocity, which is minus times of Vd. So from the second chapter second we have developed this relation कि आपके पास अगर Vd drift velocity होती है तो what is the value of current? It is nothing but number density, number of charge per n is the number density or number of charge per unit volume multiplied with a area of the cross section, q is or e is the charge and vd is the drift velocity. Also we have to find I into L. Why we are going to find I into L? As per the definition of the last class we have studied कि जब बायोट-सावर्ट्स लॉ हम पढ़ते हैं तो we are discussing the angle between current element and the direction of the point of observation, position of the point of observation. So if we take a position of the point of observation at particular point P and current is moving along the length of the wire, then the angle between two is treated as theta. यहाँ पे भी हमको क्या करना है, करंट क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग चल रहा है, therefore we have to find I into L. So what the I into L, current into length is nothing but NAEVD into L. If we consider that a direction concept, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन को इन्वॉल्व करता हूँ तो we got the vector term and this is equal to I into L vector is nothing but minus times of NALEVD, where the negative sign is because the direction of the current is opposite to the direction of drift velocity, so there is a negative sign. Now we have to find the magnetic Lorentz force because charge conductor जो है वो चार्ज का जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर इट इज प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इट मस्ट एक्सपीरियंस एन लॉरेंट फोर्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फील्ड की तो बात हो ही गई है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई है. सो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स अगर आप निकालेंगे विच इज नथिंग बट फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड which is small f factor is equal to minus of E times of Vd cross B. अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्चुअली एक्सप्रेशन जो होता है वो तो F is equal to Q V cross B, then Q is nothing but minus times of E, Vd आपका V हो जाएगा and B आपका मैग्नेटिक फील्ड है. If N be the total number of charge particle, free charge particle, अगर N जो है be the total number of electron in the conductor of free charge particle है, then total force is nothing but N into force due to a single electron, single free electron. Now what is the capital N? Capital N is equal to the number density multiply the density. कैपिटल N को हमने नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया. नंबर डेंसिटी एक्चुअली क्या है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इनटू मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम. तो N इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n है ये, इनटू AL मतलब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें सो दैट द डायमेंशन रिमेंस आइडेंटिकल. नाउ द टोटल फोर्स इज व्हाट, इट इज नथिंग बट n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है ना, f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट अ रिलेशन माइनस टाइम्स ऑफ NLE, ये एक फैक्टर हो जाएगा एंड VD क्रॉस B अनदर फैक्टर बच जाएगा.
तो स्टार्टिंग का पूरा फैक्टर जो है विच इज नथिंग बट इक्वल टू कैपिटल एन, तो दैट कैपिटल एन हो जाएगा एंड बाकी वी डी क्रॉस बी अगर आप ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन आई थी स्मॉल एफ की, वहां पे आपने आई एल सेकेंड एक्सप्रेशन अगर हम देखें पेज पे सेकेंड या थर्ड एक्सप्रेशन आपकी देखी थी आई एल वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ एन ए एल ई वी डी, दैट पर्टिकुलर रिलेशन की जगह हम क्या डाल देंगे आई एल वेक्टर डाल देंगे क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, तो आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एफ वेक्टर. From here we got a relation that if the current element is one of the direction and magnetic field along the different direction, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो they must have an direction, हम L वेक्टर के x के along मांगते हैं, सॉरी I वेक्टर अगर मांगते हैं कि जो करंट है कैरिंग बाय है वो x के along है और मैग्नेटिक फील्ड y के along है, तो ऑब्वियसली फोर्स जो होगा वो थर्ड वेक्टर होगा which is आपने पढ़ा है कि whenever there is a cross product the resultant is along the third direction, तो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी थर्ड डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगी. सो द मैग्नीट्यूड अगर हम निकाले इन टर्म ऑफ जर्नल, मतलब अगर हम वेक्टर्स को सिंपल टर्म में कन्वर्ट करें देन यहाँ पे हो जाएगा एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा. ठीक है, क्योंकि आई एल क्रॉस बी है तो देयर मस्ट बी एन एंगल बिटवीन आई एंड बी, करंट कैरिंग एलिमेंट और बी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज योर नथिंग बट थीटा. तो थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी है आपका उसके बीच में होगा. Moving to the next page. If this theta angle जो आपने theta भी निकाला that theta is coming to be 0 or 180 degree means the magnetic field and the force both are in parallel direction. Sorry, magnetic field and current because F is equal to B cross I आया था ना, B cross IL था, IL cross B आप कह सकते हैं, तो we are talking about B and I. So if the direction of the magnetic field and direction of the current are parallel to each other, that means either the theta is equal to 0 or theta is equal to 180 for the case of anti-parallel. The force comes to be 0. Why it is 0? Because sine 0 and sine 180 both have a magnitude of 0. So do not experience any force if the current carrying conductor is placed parallel to the magnetic field. Now move to the second case. If we assume that magnetic field and the current are perpendicular to each other, magnetic field and current carrying जो length थी आपकी वायर की that is perpendicular to each other, that means sin theta is equal to 90 degree, theta is 90 degree, therefore sin 90 is equal to 1 and sin equal to 90, that sin 90 is equal to 1 is the maximum value, therefore force की जो maximum value आएगी inside a magnetic field, it will happen only when the direction of the current and direction of the magnetic field are perpendicular to each other. Therefore F is equal to BI into L. डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हम बात करते हैं बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपका जो लेंथ है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is given by the Fleming left hand rule. Fleming left hand rule. What it is? Stretch your left hand in such a way that the forefinger, the middle finger, and the thumb are mutually perpendicular to each other. Or we use a single term orthogonal. It means they are making 90 degree with respect to each other. Orthogonal. Such that the forefinger points in the direction of the magnetic field, middle finger shows the direction of the current, then thumb shows the direction of force. ध्यान रखिएगा, first you have to discuss about the magnetic field and current, then you have to discuss about the force. पहले आपको करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, देन देगी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मेक इट क्लियर और सिंपल. हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमने एफ बी एन सी रिप्रेजेंट किया है विच इज फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, एंड इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव टेकन इट एज फादर मदर एंड चाइल्ड. फादर मदर एंड चाइल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एफ फॉर फादर वन डायरेक्शन, एम फॉर मदर सेकेंड डायरेक्शन एंड सी फॉर चाइल्ड. तो M जो है that is for mother and magnetic field, C for current and for the child, and F is for father or force. So it's easy to handle this. Left hand rule आप easily इसको study कर सकते हैं. Moving to the next slide. This is the next slide.
Now we have to find the force between two infinitely long parallel current carrying conductor. अभी तक आपने एक सिंगल कंडक्टर देखा था, तो उसमें करंट फ्लो कर रहा था, इट इज प्लेस इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड एंड आपने उसकी वैल्यू निकाली गई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दे आर मूविंग, दे आर कैरिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन। देख सकते हैं आप, x1 y1 और x2 y2 दो आपने इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर लिए हैं, and they have a current I1 and I2, separate values are there, and these currents are moving along the same direction. Now what we are going to find, we have to find the force on करंट कैरिंग x1 एलिमेंट जो है आपका x1 y1, उसमें कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकंड वायर, बिकॉज सेकंड वायर में करंट जाएगा, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है, तो वो क्या करेगी, आपकी फर्स्ट वाले वायर पे एक फोर्स डेवलप करेगी। Similarly, when we have to discuss about the force on second wire due to the magnetic field of the first wire, then we have to find a regulation for that. तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वायर को कंसीडर करेंगे एंड उस पे सेकंड वायर का इफेक्ट देखेंगे, फिर सेकंड वायर को कंसीडर करेंगे एज ए प्राइमरी वायर एंड उस पे फर्स्ट वायर का इफेक्ट देखेंगे। So here x1 y1 and x2 y2 are the two conducting wire placed parallel to each other and they are separated by a distance of r. If I2 and I1 are the current, एक्चुअली यहाँ पे I1 and I2 है, उसको आप ठीक कीजिएगा। I1 and I2 are the current flowing through x1 y1 and x2 y2. I1 is current from x1 y1 and I2 is current from x2 y2. ठीक है, in the same direction the force experienced per unit length, force experienced per unit length by the conductor x1 y1. सबसे पहले हम x1 y1 पे फोर्स का डेवलपमेंट देखते हैं, कितना फोर्स डेवलप होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट थ्रू द कॉइल थ्रू द वायर x2 y2. x2 y2 में जितना भी करंट है उसके करंट एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा एंड उसका इफेक्ट आपको पड़ना है x1 y1 पे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि x2 y2 कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, which is given by the relation जो आपने बायट-सावर्ट्स लॉ के केस में पढ़ी थी for the straight wire, B is equal to mu naught divided by 2 pi I2 divided by R. This is a magnetic field due to the current carrying wire. Straight current carrying wire के कारण जो magnetic field develop होता है that is this much. Now we have to find the force on the first wire. For that, what we are going to use? First of all, we are going to use right hand thumb rule to identify the direction of the magnetic field. Hold your right hand thumb circular to B2. आपने क्या किया, आपने यहाँ पे अपने राइट हैंड को मतलब रोल किया है to find the direction of B2 at point P, which is perpendicular to the plane of paper and inward in direction. आप देखिए यहाँ पे जो आपको केस दिया है, यहाँ पे वायर 1 के अंदर एक पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पे दो रेड लाइट क्रॉस कर गई है, रेड लाइन क्रॉस कर गई है, that point is P. Hold your right hand thumb moving the thumb in pointing toward the direction of the current and the finger, first finger क्या कर रही है, इनवर्ड की तरफ जा रही है, और इनवर्ड जाने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। आपकी जो कर्विंग है वो अंदर की तरफ जाएगी, तो आपने दिखा दिया यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 होगा, दैट इज इनवर्ड टू द पेपर, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड टू द पेपर। नाउ सिंस करंट I1 लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I2, क्योंकि I1 करंट जो है वो I2 की मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, मींस करंट कैरिंग कंडक्टर I1 प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B2। दैट मींस F जो आप निकालेंगे, जो कि अपने पिछली रिलेशन को डेवलप किया कि फोर्स इन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच इज नथिंग बट F इज इक्वल टू क्या आया था, I L क्रॉस B आया था, वही हम यूज करेंगे। अगर हम वेक्टर यूज कर रहे हैं तो वी हैव टू मेंशन थीटा कंपोनेंट आल्सो, अदरवाइज इफ वी टेक दैट, क्योंकि यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि वी आर यूजिंग राइट हैंड रूल, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता भी चल गया कि I और B के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, देयरफॉर sin थीटा कंपोनेंट हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो F इज इक्वल टू BI into L, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ। अब कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस फॉर ए यूनिट लेंथ, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ है, सबसे पहले मैं स्मॉल लेंथ के लिए कंसीडर करूंगा, देन उसको इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं स्मॉल लेंथ के लिए कंसीडर करता हूं, दैट मींस लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1। देयरफॉर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो फोर्स आएगी, व्हिच इज नथिंग बट B2 टाइम्स ऑफ I1 क्रॉस L। ये रिलेशन आपकी ऊपर वाली रिलेशन थी, ठीक है, एंड L की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट क्या कर दी है, 1 सब्स्टिट्यूट कर दी है, देन
it becomes mu b2 into I1. b2 की वैल्यू आपको नोन है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई 2i 2 डिवाइड बाय r इंटू I1. इसी चीज को जब हम क्या करेंगे I1 से मतलब ये आपकी जो एक्सप्रेशन है इसे फर्दर सॉल्व किया तो म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाय r. ये एक रिलेशन डेवलप हो सकती है. यू कैन कट 2 विद 4, आप 2 को 4 के साथ कटिंग भी कर सकते हैं एंड यू गॉट अ सिंपल वैल्यू. अब हम क्या करते हैं यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं फोर्स के डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए. हमें क्या क्या पता है, हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता है, हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता है. ठीक है, करंट इज अपवर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. तो हमारे पास एक थर्ड कंपोनेंट डेवलप होगा विच इज अ कपलिंग ऑफ ड्यू टू दैट बी वेक्टर एंड आई वेक्टर के कारण जो डेवलप होता है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था विच इज फोर्स वेक्टर विच इज अलोंग द थर्ड डायरेक्शन. तो वन इज इनवर्ड वन इज अपवर्ड. तो एक थर्ड कंपोनेंट डेवलप होगा विच इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. अब क्या करेंगे इसके लिए अपने मैग्नेटिक फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेंगे, करंट को क्या करेंगे आप अपवर्ड लेंगे तो थंब आपका एक डायरेक्शन इंडिकेट करेगा विच इज टुवर्ड द वायर x2 y2. आपको फोर्स की डायरेक्शन x2 y2 की तरफ एक फोर्स डेवलप होती हुई दिखाई देगी. दैट मींस ये एक फोर्स डेवलप कर रहा है, वो आपको यहाँ पे कैपिटल F से दिखाया गया है. सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन x2 y2 वायर कैरिंग करंट I2 इन द फील्ड ऑफ इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B1. अभी हमने क्या किया है कि हमने वायर को चेंज कर दिया. अब हम I2 के लिए निकालना चाहते हैं वायर जो है ऑफ लेंथ x2 एंड y2, उसके लिए हम निकालना चाहते हैं कीपिंग दैट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फर्स्ट वाली वायर की थी. प्रोसीजर रिमेन द सेम. यू गॉट B1 हेयर, यहाँ पे आप B1 निकालेंगे विच इज म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड 2 I1 बाय r. एंड उसके बाद आप फोर्स निकालेंगे विच इज नथिंग बट B1 इंटू I2 इंटू 1. रिलेशन आएगी सेम, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाय r. तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, सिमिलर आंसर आएगा. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. ये देखिए, therefore when the two parallel conductor carrying current in the same direction they are acting with a force like first वायर पे आपने with a force देखा तो it is toward the left. सेकंड वायर पे जब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो वो टुवर्ड द राइट जाएगा. मींस द वायर पे जो फोर्स लग रही है दे आर जस्ट यूनिफाई एक जगह पे होने की कोशिश कर रही है. दैट मींस दे आर अट्रैक्टिव बिकॉज वन इज एक्टिंग टुवर्ड द राइट अनदर एक्टिंग टुवर्ड द लेफ्ट. तो चार्ज पार्टिकल क्या मतलब जो आपका करंट कैरिंग वायर है वो क्या करने की कोशिश करेगा, इट विल फोर्सेस टू अट्रैक्ट, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. एंड द फोर्स ड्यू टू ईच कंडक्टर इज गिवन बाय द सिंपल रिलेशन F1 to F21 आपने निकाल लिया. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द करंट इज गोइंग टू बी रिवर्स. अगर करंट को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा उस कंडीशन में. इन दैट पर्टिकुलर केस द मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिमेन्स अपोजिट. इस केस में अट्रैक्ट होने की जगह क्या कर जाएगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, वन इज मूविंग टुवर्ड द राइट अनदर इज मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट, तो रिपेलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी इस केस में. तो दैट इज अ लास्ट केस हियर. फॉर टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप इट हियर.